ہم اپنے بچے کو نیک بنائیں. محترم حضرات, نیک بناتے کہاں سے ہے؟ ایک طرف دعوت گناہ دیتے ہیں, سوچتے ہیں بچہ نیک ہو جائے, ایک طرف اچھی فکر دینا سوچتے ہیں, ایک طرف گناہ کی دعوت دینا چاہتے ہیں. محترم حضرات, اگر کوئی معنی مفہوم اگر بات کرنا بھی مقصد ہونا تو اپنے بچوں کے ساتھ ہم رہنے کے بعد جھوٹ بول کر نیک بنانا سوچتے ہیں, احانت کر کے نیک بنانا سوچتے ہیں, استغفار کر کے نیک بنانا سوچتے ہیں. اچھی تربیت کہاں سے ہوگی؟ اچھا لفظ ہم نے نہیں دیا, قرآن و حدیث کی روشنی ہم نے نہیں سکھائی, حدیث طیبہ ہم نے نہیں سکھایا, زمانے کے رسول کو ہم نے بھلا دیا. محترم حضرات, زمانے میں رہ کر اپنے اسلاف کے طریقے کو ترک ہم نے کر دیا. والدین نے کیا کیا سکھاتے تھے اور آج کے والدین کیا سکھاتے ہیں؟ آج کی بات کو, آج کی رسم کو ہم نے اپنا لیا ہے اور تمام رسموں کو چھوڑ دیا ہے. اور میرے بھائی, بچوں کو ہم کیا سکھاتے ہیں؟ بچوں کو اچھی تربیت نہیں دیتے, احانت کرتے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں, گناہ کرتے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں, استغفار کرتے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں. پھر رزلٹ کیا ملتا ہے؟ 0/0 ملتا ہے. پھر جانتے ہیں ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا, کل کہنے والا مسلمان تو ہے, ایمان والا نہیں ہے, زبان میں تاثیر کا نور نہیں ہے, کلمہ تو پڑھتا ہے نمازوں کا عادی نہیں ہے, کلمہ تو پڑھتا ہے روزے کا عادی نہیں ہے, کلمہ تو پڑھتا ہے زکات کا عادی نہیں ہے, کلمہ تو پڑھتا ہے حج بیت اللہ کا عادی نہیں ہے. محترم حضرات, ہم نے بچوں کو سکھایا کہاں ہے؟ قرآن و حدیث سکھانے کی کوشش کہاں کی ہے؟ ہم نے کہاں بتایا بیٹے مرنا ہے, قبر میں جانا ہوگا, مولا کو منہ دکھانا ہوگا. ہم نے یہ بات نہیں سکھائی, ہم نے تو سکھایا صرف اتنا ہے, اے میرے بیٹے دنیا میں دولت کیسے آئے گی, اے میرے بیٹے دولت کا انبار اکٹھا کیسا ہوگا, اے میرے بیٹے دولت کا ذخیرہ کیسے اکٹھا ہوگا. ہم نے اگر سکھایا ہے تو اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائی ہے. قرآن ہم نے دور کر دیا ہے, حدیث ہم نے دور کر دی ہے, اصول ہم نے دور کر دیے ہیں, علم فقہ ہم نے دور کر دیا ہے. محترم حضرات, فقہائے اعناف کے اقوال ہم نے دور کر دیے ہیں, علماء متاخرین کے مسئلے کو دور کر دیا ہے, علماء متاخرین کے مسئلے کو ہم نے دور کر دیا. امام زرقانی کا پتہ نہیں, بچے کو امام قرطبی کا پتہ نہیں, بچے کو ملا جابی کا پتہ نہیں, بچے کو امام نصفی کا پتہ نہیں, بچے کو امام بدیع الدین کا پتہ نہیں, بچے کو امام طحاوی کا پتہ نہیں, بچے کو امام طحاوی کا پتہ نہیں, کیا بات ہے, بچے کو بدیع الدین کا پتہ نہیں, بچے کو پھر یہ پتہ نہیں ابو بکر کون ہے, عمر کون ہے, عثمان غنی کون ہے, مولا علی کون ہے. مگر بچے کو قرآن سکھاتے تو بچہ جانتا ابو بکر صداقت میں ممتاز ہے, مولا علی شجاعت میں ممتاز ہے, عثمان غنی سخاوت میں ممتاز ہے. ہم نے بچوں کو کبھی سکھانے کی کوشش نہیں کی ہے. آج ہمارا بچہ آتنکواد بن گیا, انسان قبر کے اندر چلا گیا, بچہ زمین کے اوپر ہے. اب بتائیے اس کے اچھے عملوں کا فائدہ نہیں ملتا, اچھی باتوں کا فائدہ ماں باپ کو ملتا ہی نہیں ہے. وہ قبر میں پریشان ہے, وہ زمین کے اوپر پریشان ہے, وہ زمین کے اوپر رہنے کے بعد اچھے معمول کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. کبھی یاد نہیں کرتا ماں باپ کی قبر پر چلا جاؤ, کبھی کوشش نہیں کرتا قبرستان جا کر اپنی زندگی کو گزارا جائے. محترم حضرات, اصول کو بھلا دیا ہے, اصول کو بھلا دیا ہے, علوم جو انسان کو ملتا ان تمام علوم کو چھوڑ دیا ہے, اللہ کے کلام کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. اب بتائیے کہاں سے لے کے آئے گی؟ محترم حضرات, مسلمان تو ہے, دل میں ایمان نہیں ہے, اچھے کام کرنے کا بہانہ تو کرتا ہے, تصدیق قلب سے نہیں کرتا ہے. اب اس کا عالم یہ ہے, گلیوں میں گھومتا تو ہے, لوگ جانتے ہیں کہ اچھے انسان کا بچہ جا رہا ہے, مگر اس کے اندر اچھائیت اس لیے نہیں آئی جس سے اچھا کہا جا رہا ہے, اس نے اچھی تربیت نہیں کی ہے. اے میرے بھائی, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو کہ تمہیں انتقال کر کے جاؤ تو زمانہ دیکھتے ہی کہہ دے کتنا اچھا بچہ ہے, کتنا اچھا ٹارگیٹ لے کر چل رہا ہے, اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کر رہا ہے, اسلامی ماحول کو پیدا کر رہا ہے. پھر لوگ سمجھ جائیں کہ فلاں ایک انسان کا نور بیٹا ہے, یہ اچھا اس نے سن باپ کا اس نے سن بیٹا ہے, اچھا گمان رکھنے والا بیٹا ہے, اس کی باپ نے تربیت اچھی کی ہے, اسے ذہن اچھا دیا تھا, اسے فکر اچھی دی تھی, اسے نقش اچھا دیا تھا, اس کے مقامات کو اچھا بنایا تھا. علم دین سکھانے کی جسارت کی تھی. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچے کو کبھی نہیں سمجھاتے کہ بیٹے قرآن پڑھنا ہے, ہم کبھی نہیں سکھاتے بیٹے عشق رسول سینے میں رکھنا ہے, ہم کبھی نہیں سکھاتے بیٹے اولیاء کرام کے مزار پر رقص سجانا ہے, ہم کبھی نہیں سکھاتے. بچوں کو نہ سکھانے کے بعد جانتے ہیں پھر عالم کیا ہے, روزی میں کبھی ہے, سال میں کبھی ہے, دولت میں کبھی ہے, عمر میں کبھی ہے, علم میں کبھی ہے. ہماری دولت کی وجہ سے اس نے سن والی جو دولت تھی وہ ہمارے ہاتھ میں آتی رہی ہے, اچھی جو دولت تھی وہ ہمارے ہاتھ میں آتی رہی ہے. میں کہتا ہوں اچھا بن تو صحیح, اچھی تربیت تو دیتا, پھر تیرا بیٹے کو اللہ تیرے لیے خوشی بنا دیتا. خوشی لانی کہاں سے چاہیے؟ تو نے اچھے معاملات لانے کہاں سے چاہے؟ تو نے بچے کو اچھا نہیں بنایا, تو نے نیک بیٹے کو نہیں بنایا. اور بیٹا نیک کیسے بنتا؟ وہ نماز پڑھ جاتا ہے تو نہیں جاتا, تو جاتا ہے تو بیٹا نہیں جاتا, وہ روزہ رکھتا ہے تو ماں نہیں رکھتی, ماں رکھتی ہے تو بیٹا
बेटा नहीं रखता, बेटा रखता है तो भाई नहीं रखता, भाई रखता है तो बहन नहीं रखती। ये इस्लामी माहौल को कैसे छोड़ दिया? ए मेरे प्यारे, दामन रसूल को छोड़ कैसे दिया है? मुस्तफा के इश्क में रहने के बाद उसके रसूल के दावेदार में मुस्तफा के इश्क को कैसे छोड़ दिया है? नबी कौनैन की राह पर चलने वाले इंसान ने राह रसूल को कैसे छोड़ दिया है? मुस्तफा के नक्शे कदम पर चलने वाले और उसके दावेदार ने मुस्तफा के इश्क को तर्क करने के बाद शुरू कैसे कर दिया है? मैं कहना चाहूंगा, मुस्तफा का इश्क बच्चों के सीने में डाल दो, मुस्तफा की मोहब्बत बच्चों के सीने में डाल दो। कसम खुदा की, वो जमीन पर राहत महसूस करेंगे, तुम कब्र में राहत महसूस करोगे। जिंदगी को गुजार रहा है, तालीम को मतलब इस्लाम को छोड़ दिया है, तर्क इंसानी को मोहतरम हज़रात, इंसान ने सब कुछ अपनी जिंदगी को बेहतर समझ लिया है। मैं कहता हूँ, आप बताइए, क्या अल्लाह के कुरान से बेहतर कोई किताब है? क्या अल्लाह तबारक व तआला से बड़ी ज़ात है? क्या रसूलुल्लाह से ज्यादा इश्क वाला कोई है? क्या मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई है? प्यारे नहीं है। क्या मजहब इस्लाम से अच्छा कोई मजहब है? ईमानदारी के साथ बताओ, आप बताइए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको के रसूल में रहने के बाद बताइए हमने क्या किया है? हमने मोहतरम हज़रात दुनियावी उलूम को गलबा दे दिया, मुस्तफा के इश्क को तर्क कर दिया है। मजहब को तो मजहब हमने जाना ही नहीं, कुरान को तो हमने कुरान जाना नहीं, अपने फायदों के लिए कुरान को जाना। अगर मैयत की बात आ जाए ना तो कफन के ऊपर लड़ते हैं, अगर मैयत की बात आ जाए ना तो दौलत के ऊपर लड़ते हैं, अगर मैयत की बारी आ जाए ना तो मोहतरम हज़रात ये औलाद जमीन के ऊपर लड़ती है और लड़ती हुई नजर आती है। तो तुमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होते तो तेरा बच्चा आज आशिक रसूल बन जाता। तूने सब कुछ भुला दिया है, तूने मजहब को भुला दिया है, तूने मजहब इस्लाम को दूर कर दिया है। मैं कहना चाहूंगा, मजहब इस्लाम तो उस रूजू का नाम है, उस मोहतरम हज़रात सुरैया का नाम है, उस मोदी का नाम है कि अगर मजहब से कोई मोहब्बत लगा ले तो परवरदिगार उसकी पूरी बस्ती पर बरकतों को नज़ूल फरमा देता है। बताइएगा, दो दोस्त बड़ी अच्छी जिंदगी को गुजार रहे हैं, एक दोस्त गरीब है, एक अमीर है, एक वक्त आता है दोनों बराबर हो गए, लेकिन वक्त बढ़ता चला गया, एक हिंदू है मुस्लिम है, एक गैर मुस्लिम है, लेकिन दोनों अपने वक्त को गुजार रहे हैं, वक्त बढ़ता चला गया। लिहाजा आप जानते हैं जैसी वक्त बढ़ा मजहब इस्लाम से मोहब्बत करने वाला है, एक अपने मजहब से मोहब्बत करने वाला है, जैसी वक्त को बढ़ता चला गया मोहतरम हज़रात दोनों में मोहब्बत बढ़ती चली गई, मोहब्बत आगे बढ़ती चली गई। अब जानते एक गैर मुस्लिम है, एक मुस्लिम है, दोनों में आपसी मोहब्बत हो गई है। लोग कहते हैं ये मोहब्बत कौन सी है? मैं कहता हूँ ये मोहब्बत जो भी हो, मगर दोनों में उनसियत हो गई है, दोनों में अकीदत हो गई है, दोनों में उल्फत हो गई है, दोनों में उनसियत होने के बाद आप जानते दोनों में इख्तिलाफ नहीं होता। रास्ते पर चलते हैं लोग उन्हें याद करते हैं, रास्ते पर रहते हैं लोग उन्हें देखा करते हैं, उनकी दोस्तियों की कसम खाई जाती है, उनकी उल्फत की कसम खाई जाती है, उनकी मोहब्बतों की कसम खाई जाती है। जैसे ये जमाना आगे बढ़ता है, जानते एक दिन ऐसा आया, ये दोस्ती ने नफरत का रास्ता ले लिया है, समझते चलना इस दोस्ती ने नफरत का रास्ता ले लिया है, दोनों में इख्तिलाफ रहने लगा, अभी मोहब्बत थी अब नफरत रहने लगी। आप जानते नफरत किस वजह से थी? मजहब इस्लाम की वजह से थी। इसलिए कि मुसलमान कहता था मेरा मजहब अच्छा और गैर मुस्लिम कहता था मेरा मजहब अच्छा। गैर मुस्लिम कहता है मेरा मजहब अच्छा और मुसलमान क्या कहता है? मेरा मजहब। मोहतरम हज़रात दोनों में बात आगे बढ़ जाती है। मुसलमान कहता हूँ भाई मैं तुझसे मोहब्बत तो करता हूँ मगर मुस्तफा की इश्क से ज्यादा तुझसे मोहब्बत नहीं करता, ज्यादा रखता हूँ। आज हमने अपने दीनियों में दीनदारियों के माहौल में मोहतरम हज़रात गैर मुस्लिम और मुशरिकों को लेकर के आ गए हैं और सोचते दीन का हिस्सा है। ठीक है, दुनिया के उमूर को लेकर चलने के लिए आप इसमें रंजिशें नहीं रखनी चाहिए, मगर बताइए ये भी तो सही नहीं है। अपने दीनी माहौल में उस गैर मुस्लिम को लेकर के आ जाओ, मगर जानते दोनों में जब इख्तिलाफ हो गया तो एक ने कहा मेरा मजहब अच्छा है, दूसरे ने कहा मेरा मजहब अच्छा है। वो कहने लगा मजहब इस्लाम का जवाब नहीं, तो वो कहने लगा मेरे मजहब का जवाब नहीं। आखिरकार मुसलमान कब बर्दाश्त कर सकता है? मुस्तफा का आशिक ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुस्तफा के मुतासिर होने वाले कुरान की कोई बुराई से याद कर ले। कुरान को वो जो कुरान अल्लाह ने फैसला कर दिया, कुरान सच्ची किताब है, जब उसकी बुराई की बारी आती है दोनों में नफरत होने लगी। मोहतरम हज़रात आखिरकार ये नफरत पड़ जाती है, वो अलग रहने लगा, ये अलग रहने लगा। दोस्तों की जो कसम खाते थे वो लोग बातें बनाने लगे, वो भाई कैसे इंसान है, ये तो बड़ा नबी का चाहने वाला था, ये तो बड़ा अपने मजहब का चाहने वाला था। इन दोनों में रंजिशें कैसे हो गई? आखिर रंजिश बढ़ जाती है, रंजिश बढ़ने के बाद वो इसकी बुराई लोगों में करता है, वो इसकी बुराई लोगों में करता है। आखिरकार इनमें सामना हो गया, सामना होने के बाद कहता है गैर मुस्लिम वो भाई मेरा मजहब अच्छा है, उसने कहा था मेरा मजहब अच्छा है इसलिए कि कुरान सच्चा है, कुरान वाला सच्चा है, कुरान जिसने भेजा वो सच्चा है, कुरान जो लेकर आया वो सच्चा है।
बर्दाश्त कर सकता है कि कुरान की कोई तौहीन करते। मोहतरम हज़रात कहता है कुरान सच्चा है, उसने कहा था कुरान सच्चा नहीं, मेरी किताब सच्ची है। दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है, इख्तिलाफ मोहतरम हज़रात उलझ पर चला जाता है, आखिरकार झगड़ा हो गया, झगड़ा बढ़ता चला जाता है। आप जानते दोनों आमने सामने खड़े हो गए। गैर मुस्लिम से मुस्लिम ने कहा था अगर तू चाहता है कि किसका मजहब सच्चा है तो अपनी किताब तू लेकर आ जा, कुरान में लेकर आ जाता हूँ, कुरान में लेकर आ जाता हूँ, किताब लेकर आ जाता हूँ, तू अपनी किताब लेकर आ जा, मैं अल्लाह का कुरान लेकर आता हूँ। अब बता तो सही, कुरान मैं लेकर आऊंगा, अपनी किताब तू लेकर के आएगा। दोनों में मोहतरम हज़रात अहद हो गया। वायदा होने के बाद अगले दिन फिर आते हैं, लेकिन अगले दिन मिलते नहीं है। मुलाकात होने के बाद फिर चले जाते हैं, फिर वादा कर लेते हैं इतने दिन के बाद फिर हम हाजिर हो जाएंगे। दोनों हाजिर हो गए, कहा था किताबें तो लाई नहीं, फिर लौट के जाते हैं, उसी रोज किताब लेकर के आते हैं। अब वो कहता है भाई करना क्या है ना, उरूज पर अपनी किताब को रखे, उरूज पर मैं अल्लाह के कुरान को रखूंगा, तू अपनी किताब को उरूज पर रख, मैं अपनी किताब की ताज़ीम करता हूँ, तू अपनी किताब की तकरीर कर ले, मैं अपनी किताब की तौक़ीर करता हूँ, तू अपनी किताब को बेहतर समझता है, मैं अपनी किताब की तौसीफ बयान करता हूँ। तो सही दोनों में इख्तिलाफ जैसे हुआ तो कहा था भाई कुआं खोद ले, कुआं खोद लिया गया, कहा एक कुआं खोद ले, दोनों कुएं खोद दिए गए। मोहतरम हज़रात आग जला दी गई, लकड़ियां उसमें डाल दी गई, कोयले उसमें डाल दिए गए। मतलब इस्लाम का मानने वाला कब बर्दाश्त कर सकता है कि अल्लाह के कुरान पर कोई उंगली उठा दे? अल्लाह का कुरान है, आज इसको पढ़ना तुमने छोड़ दिया है, आज इससे पूरी तुमने बना ली है। पूरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अल्लाह के कुरान को भी पढ़ लिया करो, क्यों छोड़ दिया है? अल्लाह के कुरान को छोड़ने के बाद कामयाबी की तरफ भागने वालों कामयाबी मिल नहीं सकती है, इसलिए कि जहाँ सारी कामयाबी जाकर घुटने टेक देती है वहाँ से अल्लाह के कुरान की इब्तिला होती है। मतलब इस्लाम को तर्क कर दिया है, मतलब इस्लाम से तुमने दूरी बना ली है। आखिरकार कहा था मतलब इस्लाम के मानने वाले ने, ओ मेरे भाई बता तो सही ये सामने क्या है? अरे ये तो कुआं है, इसमें आग लगा दी गई, लगा दी गई, मेरे कुएं में भी लगा दी गई। कहा था अपनी किताब लेकर के तू कुएं में गिर जा, के कुरान लेकर के अपने कुएं में गिरता हूँ। बात बढ़ती चली गई, मकाम आगे आ गया, मसला बढ़ता चला गया। जानते हैं मुस्लिम सोचने लगा, एक पहल के लिए सोचने लगा कैसी बात कर रहा है, अपनी किताब लेकर के जाऊंगा तो भी चल जाऊंगा, तेरा कुरान लेकर के जाऊंगा तो भी चल जाऊंगा। आखिरकार कहा था मुसलमान ने, भाई तू चला जा, पहले कहा था मैं नहीं जाऊंगा, जाना है तो तू चला जा। आखिरकार लड़ाई हो गई, मुसलमान जाने लगा कुएं के अंदर, वो वापस लौटने लगा। कहा था मतलब इस्लाम के मानने वाले ने कहा था तू भागता किधर है? और मेरे यार आज यारी तो नहीं भाजा, भाग किधर रहा है? उसे आवाज देता है, अपनी तरफ बुलाता है, वो देखता क्या है कि वो आग में उसका दोस्त गिर गया, उसके हाथ में रब का कुरान है, कुरान हाथ में है, आग है, कुरान हाथ में है, गड्ढा है, कुरान हाथ में है, वो अंगारों में है, कुरान हाथ में है, वो कुएं के अंदर मौजूद है। आपस में भाग करके एक गैर मुस्लिम आता है, बचाने की कोशिश करता है, तो जानते आलम क्या होता है? वो कहता है भाई तूने कैसे आलम कर लिया, कैसे कुएं में गिर गया? कहा था मेरा ईमान है, जिस हाथ में कुरान होगा आग फूल बन जाएगी, लोग तो जाने लगा। अब बताइएगा जब दुनिया की आग को कुरान खत्म कर सकता है तो जहन्नम की आग को भी खत्म कर सकता है, खत्म कर सकता है। अपना रोशनी चाहते हो कुरान सिखाओ, अपना चाशनी चाहते हो कुरान सिखाओ, अपना रोशनी चाहते हो अपना चाहते हो बंदगी करना तो दुनिया में बंदगी करना सीख लो। और लोगों जैसी भागने लगा, मतलब इस्लाम के मानने वालों ने कहा था ये दस्तूर दे दिया, ये पैगाम दे दिया, और लोगों तुम भी याद रखना, जमाने वाले याद रखना, और मुसलमानों मुझे याद रखना, मेरे हाथ में रब का कुरान है। कहा था गोया कि उसने जमाने को दस्तूर दिया था, ये पैगाम दिया था, ना घबराओ मुसलमानों, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी होगा।